Hello, hello. This is the My Artifact episode number 2420 28 20. Sorry, 25. Today's date is 15th April, but unfortunately it is 14th. It's not unfortunate because right now it just like like it's 12 यानी 12 बज के 12 मिनट हो गए. So obviously, officially it is 15th April, but I didn't really sleep. My morning is not started yet. Okay, so this artifact episode is belongs to 14th April. So 14th April 2022. Sorry, this date is not really matter. Okay, the thing what I did. Sorry, it's not thing. It's just like the perception, the change, the thing that what I'm actually amazing or thinking about. Like film is the kind of thing that I always be admire about this thing, and I always wanted to know about this thing, like how it works, and film is makes me something really amazing. Like I always love watching films, and it is so amazing and so good. It just very best. I From the beginning I usually like Hollywood films like best in class, and the things is really great, and I never really expect anything from the Bollywood movies. Okay, Bollywood movies not like like I like some of the Bollywood movies, but yeah, whatever. It's just like it should not compare with the Hollywood, because Hollywood ka class to kuch it just stop. And then there is another film industry called Tollywood, like a South Indian film industry. So when I watch the South film, it's kind of like a really over, like whatever the things they do in that film, like whatever the action and whatever the things, it always be so much over. It's just like बहुत ज़्यादा डाल दिए. यानी अभी कभी कुछ खाना बहुत अच्छा बन जाता है तो उसमें बहुत सारे मसाले बहुत सारे भर भर के डाल दिए, तो वो काफ़ी एकदम इट डजंट फील रियली गुड. Okay, same thing happened with the South industry film. Okay, and I didn't really like, मैं बिल्कुल भी नहीं चाह, like I didn't really wanted to watch South film because it's just so cringe, and whatever the like whatever the memes they created about the South film, and whatever the internet talking about the South film, and they are laugh at South film because the action is so something like the really funny and things like that, but they are keep doing this thing. This 2022, like basically there is a three film launch. There is a Pushpa is also South Indian film. RRR is also a South Indian film, and then KGF is also a South Indian film. Okay, these three films are not belongs to mainstream media India, mainstream media in India. Now they are belongs to the Tollywood South film. Okay, like basically the original content is from Telugu or Tamil, something like that. It's not Hindi. Okay, but right now those films are dominating in the Bollywood film industry. Bhai Kamal, like there is a one Bollywood movie that I know which is kind of like a have some sort of buzz, is a 83 movie, which is kind of like a really good. But after that Bollywood is nothing. उसके बाद तो मैंने कुछ दिखा ही नहीं, just like all dump out. And those three films, like basically like a Pushpa is almost like a 1 month, like a 2 month before, and then this RRR is 1 month before, and KGF is just right now. Wow, like let's just talk about this KGF film. Okay, like
I don't know how should I start and I don't know how should I end, because there are so many things to say, and even if I wanted to say that, I just have to write a book about what I wanted to say about this film, because there are so many things to say. Okay. And I am not actually categorized with this thing, because like फिल्म में कुछ क्रिटिक्स होते हैं ना जो बिल्कुल एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लेते हैं कि हाँ इसमें ये अच्छा था, ये बुरा था, और ये नहीं. The experience is matter. The when you watch the film, and whatever the experience you get while watching the film, that matters. Like, let me tell you one thing, the one of the amazing experience regarding with the film that I have, which I never really forget in my entire life. I went to the Nagpur. I actually not went to, I was living in Nagpur, and I was going to watch a film, Bahubali 2. Okay. And I went with my friends. Okay. So I watched that film first day, second show. Okay. The crowd is really so much. Okay, let me tell you one thing, I didn't really watch the Bahubali 1. Okay, so I didn't really know anything about who is the Bahubali and what is all those things. I didn't really know. Okay, first thing. Another thing is that I went to the Bahubali 2 film because of that my friends are insisting me, let's go. And as also the buzz is actually so much, like the buzz is actually created by Bahubali, and the Bahubali just like the so amazing film, and the like जिस तरह से buzz create हुआ था regarding this Bahubali 2, चलो देख लेते हैं ना. like I am not actually like I'm like मैंने तो पहले डिसाइड कर लिया था कि this is kind of like a really बकवास मूवी है ना. I was just going for I was going to watch this film just for the my friends is insist me, that's it. Okay, बस इतना ही. But when I watch the film, stadium is like the theater is full, house full, entire house full. Okay. The watching the film with all those people, it's not a film, dude. It's a festival. At that time, I was watching the Bahubali. That experience is like I was not watching film. I was enjoying that film. Because of that, it's a celebration, and celebration has to be happened with the multiple people, not one people. Okay, this is exactly happening. The film start, the entry sequence of the main character. In that entry sequence, that Bahubali, that guy, he came with his wrath, he just broke his door, and just like he just tried to underneath his elephant or whatever it is. Okay, it's just kind of like a very hard to explain all those things, but when you watch that scene, and when you experience that scene, and everyone around you is just like they are crazy about that, the sound and music and the people, and just like ऐसा हो गया था ना कि just अभी 10th स्टैंडर्ड का लास्ट पेपर खत्म हो गया, और जैसे एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, बाहर डीजे लगाए. फिर उस वक्त जिस तरह से स्टूडेंट एक्साइटमेंट में नाचने लग जाते हैं ना, उस तरह से दिस इज द एग्जैक्ट थीम हैपन, डूड. लोग just like they are I don't know, they are doing something really crazy stuff, like they are like a city baja rahe, the things they are doing was, I was like wow. I just like मैं भी उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करने लगा उस फिल्म को, उस सीन को, उस, एंड दैट इज़ अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस. वो चीज़ मेरे लाइफ में, मैं उस चीज़ को कभी भी, आई नेवर रियली फॉरगेट दैट मोमेंट. शायद ही मैं उस चीज़ को कभी भूल पाऊँगा, लिटरली, बिकॉज उस चीज़ यानी दैट मोमेंट वॉज हैपन. ओके, like I was like whatever the film it is, like basically that Bahubali 2 was really amazing film, but the experience I got while I was watching the film
it's just like wow, it's just like great, it's just like toba, it's just like the best. Okay, yes. So this is the Bahubali 2, which is actually released in 2018. Sorry, yeah, 18, 18, 18. nahi, it's a 17. Sorry, it's a 17, 17, 2017. Okay, then after that, like basically, I was also a fan of Marvel movies too. Okay, and the biggest Marvel movie is the Avenger Endgame, and when I watched that film, I was also really excited about that film because the graphics and things, the story is also great. But it should not be like a not compared to like the वो experience वो नहीं आया. हाँ चलो वो climax का scene and things happened was so amazing, there is no doubtful, but the celebration is nothing like there are no people is actually CT मार रहे, they are not doing something like that. It just feel like faint, it just feel like हाँ चलो है ठीक है okay yeah this film is great. Okay, yeah, like I am actually telling from my perspective, might be your perspective is kind of like very different, so maybe you are completely away of whatever I'm it just this is my perspective. Okay, this is my video, this is my perspective. Okay, so this actually happened like 2017 बाहुबली 2. then after that फिर मैंने सोचा कि हाँ चलो ये बाहुबली एक्सेप्शनल है क्योंकि साउथ इंडियन फिल्म में हाँ चलो कुछ कुछ डायरेक्टर्स है, कुछ कुछ लोग हैं जो साउथ इंडियन में बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं, वो टेस्ट साउथ इंडियन का ही था. ओके, दे आर नॉट लाइक बेसिकली यू ईजिली अंडरस्टैंड कि ये बॉलीवुड है या साउथ है. ओके, सो बॉलीवुड में फिल्म किस तरह से होती है, बॉलीवुड में एक तरह से पेसिंग होती है, यानी बॉलीवुड ज़्यादा एक्शन वाली फिल्म बनाते नहीं क्योंकि उसको पहले ही पता है कि उनके पास बहुत गंदा ग्राफिक्स है. ओके, एंड व्हेन दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ग्राफिक्स तो ऑडियंस तो यू पकड़ लेते हैं और क्रिटिसाइज तो भाई अलग. ओके, दूसरी चीज़ बॉलीवुड में जो फिल्म बनती है वो काफ़ी एक तरह से इंस्पिरेशनल होती है, काफ़ी रियलिस्टिक बेस होती है, काफ़ी यानी इतना ज़्यादा मार धाड़ एक्शन फिल्म होती है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं. ओके, काइंड ऑफ लाइक रिलेट विद द नेचुरल थिंग्स. ओके, तो उसी तरह से फिल्म बनती है बॉलीवुड में एंड इट्स गुड, इट्स ग्रेट. आई लाइक इट दैट लाइक 83 फिल्म इज़ एक्चुअली हिस्टोरिकल, लाइक इट्स एक्चुअली the film about the Kapil Dev, as also Dangal is also a film about the athlete, what does they face during his life and how they got the Olympic medal. Okay, then also all the sorry 3 Idiots is also a struggling story about the, it's not struggling story, it's a kind of like a really comedic story about the three engineer guy and what does life turn up to them and what is all those things happened. It's not like basically if you compare all those film with the KGF or Bahubali or Pushpa, so it's kind of like a, you are easily understand the difference. Yeah, those films are actually very action film and the Three Idiot and Dangal and also very kind of like a really small, it's not action movie. Okay, but from their perspective those films are really great, so I can understand. Okay, also if you wanted to comparison with Bollywood and South, you can easily compare with the editing techniques and like not editing. Okay, like साउथ की फिल्म में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाली जाती है ऑडियंस पे, धड़ 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 ये हो रहा है वो हो रहा है, मल्टीपल कैरेक्टर इज टॉकिंग एंड जस्ट लाइक द थिंग्स हैपन वेरी फास्ट एंड वेरी थिंग. तो इससे क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली इज दिस थिंग कि द ऑडियंस इज़ एक्चुअली वेरी मच एंगेज टू द स्टोरी. ओके, पर वो कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है और साउथ में ये चीज़ें बहुत कॉमन है, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डालते हैं, एक्शन बहुत ज़्यादा, डायलॉग बहुत ज़्यादा, दे आर नॉट गिविंग यू अ लिटिल ब्रीदिंग स्पेस. हॉलीवुड में भी हल्का सा ब्रीदिंग स्पेस होता है, बॉलीवुड में भी ब्रीदिंग स्पेस होता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि वो ब्रीदिंग स्पेस होने से ही आपको पेसिंग क्रिएट करती है. पेसिंग यानी क्या होता है कि अगर आप दौड़ रहे हो, ओके, तो मान लीजिए आप 25 किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो एकदम पहले से ही आप सीधा करीब बस 10 या 20 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हो, नहीं, आप पहले पेस क्रिएट करोगे. आप पहले धीरे धीरे जाओगे, फिर आप मिडल में थोड़ा पेस हल्का सा बढ़ाओगे, फिर वो हल्का एंड तक
बढ़ाते रहोगे. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ पेसिंग. ओके, फिल्म में भी पेसिंग होता है. वो पेसिंग किस तरह से डिनोट किए जाते हैं? द वे दैट द फिल्म मूव्स. ओके, लाइक क्लाइमैक्स में बहुत ज़्यादा पेसिंग होता है क्योंकि वहाँ पे एंड में सीक्वेंस में एक्शन होता है एंड थिंग्स हैपन सो टाइट. सो आप बहुत ज़्यादा पेस में होते हो. ओके, बट साउथ फिल्म में क्या होता है कि साउथ फिल्म में जो पेसिंग होती है वो काफ़ी फास्ट होती है और काफ़ी धड़ धड़ धड़. जस्ट लाइक वो पेसिंग के लिए वो वक्त रिप्रेजेंट नहीं करता, वो बिगिनिंग से पेसिंग क्रिएट करते हैं और वो कॉन्स्टेंटली पेसिंग रखते हैं. ओके, सो दिस इज़ इट. तो उस तरह से आप क्लैरिफाई कर सकते हो ये बॉलीवुड फिल्म है ये और ये साउथ की फिल्म है. एज ऑल्सो बॉलीवुड मूवीज एक्चुअली represent काइंड ऑफ लाइक रियली हॉलीवुड मूवी, क्योंकि बॉलीवुड मूवी में जो फिल्म बनती है वो एग्जैक्टली रेप्लिकेट करते हैं हॉलीवुड फिल्म से. ओके, रेप्लिकेट यानी ऐसा हो सकता है कि हाँ चलो एक हॉलीवुड फिल्म है जिसका पास्ट एक बॉलीवुड फिल्म से आप रेप्लिकेट कर सकते हो कि हाँ चलो दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक अगर ये बॉलीवुड इस तरह से काम करेगा तो वन डे इट विल बिकेम अ हॉलीवुड काइंड ऑफ लाइक अ फिल्म जिसमें ग्राफिक्स अच्छे होंगे, काइंड ऑफ लाइक दैट. ओके, बट साउथ की जो फिल्म होती है वो काफ़ी अलग ही होती है. As also I didn't really watch the like basically I watched some of the French movies too, and as also I watched some of the UAE and also Russian movies too. तो वहाँ पे भी एक तरह से पेसिंग थोड़ा सा अलग होता है. स्टिल आई डिडंट रियली वॉच सम ऑफ दी लाइक इंडोनेशियन भी फिल्म बनाते हैं, पाकिस्तानी भी फिल्म बनाते हैं. देयर आर सो मेनी पीपल, दो सो मेनी कंट्रीज आर वॉचिंग मेकिंग मूवीज़. आई डिडंट रियली नो अबाउट दैट. बट फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो फिल्म बनाई जाती है वो इंडिया में ही बनाई जाती है. ओके, ऑल ओवर द वर्ल्ड. ओके, सो दिस इज़ इट. मैं मेन टॉपिक पे तो आया ही नहीं, मैं तो बस सब राउंड की बातें कर रहा हूँ, सेंटर में तो आया ही नहीं. सो दिस इज़ इट, द साउथ फिल्म. एंड आई वॉज एक्चुअली थिंक दैट कि साउथ फिल्म तो मैं तो जस्ट लाइक आई वॉज एक्चुअली नॉट ब्लेस्ड विद लाइक आई जस्ट ऑलवेज फील लाइक कि साउथ फिल्म तो बहुत ही बकवास फिल्म है. दे आर नॉट रियली वर्थ इट टू वॉच. ओके, लाइक आई ऑलवेज लाफ. मैं हमेशा हंसता था व्हेन उस तरह से फिल्म रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह से फिल्म बनाए तो मैं हंसता था उस चीज़ पे. जस्ट लाइक a very laughing situation for me. Like yes, but जिस तरह से इस फिल्म लाइक द पुष्पा एंड RRR and KGF, they change the game entirely. लाइक बेसिकली मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया. लाइक बेसिकली अगर साउथ की फिल्म कहीं लगती है और कंपैरिजन में कोई हॉलीवुड की फिल्म है तो मैं हॉलीवुड छोड़ दूंगा, मैं साउथ की फिल्म देखूंगा भाई. क्योंकि साउथ की फिल्म में जो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग लाइक अभी हम बात करते हैं KGF 2 के बारे में. ओके, सो व्हाट इज़ दिस फिल्म एंड व्हाट इज़ ऑल दोस थिंग्स. एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल द KGF 2 वाज भाई कमाल, बेस्ट. उसको देखने में मुझे, एक्सपीरियंस करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. आई एम फील रियली हैप्पी. और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मेरे 200 रुपये खर्च हो गए बिना फोकट के. नहीं, आई फील दैट कि दिस इज़ समथिंग रियली एक्स्ट्रॉर्डनरी and this is really worth it. KGF 2 is, so this is it. This is my review. Okay, or if you want it to in depth, now listen what is exactly is this thing. So let's just talk about some of the aspects of the films. Okay, the one key highlight of the film which is actually very much replicated, which is kind of like a very attracted towards me to watch that film, is color grading. यानी जिस तरह से लाइक द लुक ऑफ द फिल्म, द कलर लुक इज़ really dirt. It just give you black, brown, and black, brown, yellow, orange, and contrast. Yeah, it's a contrast. Yeah, and contrast, and as also little bit of less shadows. Okay, like mid tone में थोड़ा सा कम किया. Okay, it gives you very dirt look, and that dirt यानी मिट्टी की जो look है ना, dirt and black look, black and brown,
this is kind of like a two main color used in the color grading which looks very good. Like I didn't really seen that this layer in kind of like a इस तरह के layer मैंने कभी देखा नहीं यार. Like I never really saw that kind of layer. Okay, यानी जिस तरह से color grading की है मे बी शायद बहुत सारे फिल्म में किया होगा इस तरह से ग्रेडिंग, बट आई नेवर रियली सॉ दैट. एंड जिस यानी बेसिकली व्हाट इज एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू वन थिंग, द लुक इज द फिल्म इज एक्चुअली डिटरमाइन हाउ इट फिल्म्स. लाइक ये फिल्म कौन सी कैटेगरी की है, उसके एक सेकंड या एक फ्रेम रिप्रेजेंट करता है कि वो फिल्म किस तरह की है. वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेडिंग, कलर ग्रेडिंग. एंड द उस फिल्म की यानी KGF 2 की जो ग्रेडिंग है भाई कमाल, बेस्ट. लाइक वाह. लेट मी टेल यू वन थिंग कि शायद मैंने इस तरह की ग्रेडिंग मैंने कभी भी नहीं देखी यार. लेट मी टेल यू वन थिंग, मोस्टली ऑरेंज एंड टील्ड बहुत फिल्म में होता है और वो इतनी बार यूज़ हो चुका है ना बहुत सारे फिल्मों में, तो वो एकदम कॉमन सा लग गया है. ओके, बट ये ब्लैक और ब्राउन वाला जो टेक्सचर है ना, दैट इज़ वेरी यूनिक. लिटरली आई वॉज एक्चुअली ब्लोन बाय. मैं तो बस फिल्म कलर देखने के लिए गया था. मैंने जब ट्रेलर देखा भाई क्या कलर है यार. लाइक वाओ, इट्स जस्ट ग्रेट. आई डोंट रियली केयर अबाउट द फिल्म. आई डिडंट रियली वॉच द KGF 1-2. मैंने पहली फिल्म भी देखी नहीं. आई डिडंट रियली केयर अबाउट दैट. ओके, मैं बस उस कलर इतने मस्त दिख रहे थे. जस्ट लाइक आई व्हेन आई वॉच द ट्रेलर, भाई कमाल का ट्रेलर है, सॉरी कमाल के कलर्स है. सो ग्रेडिंग बेस्ट. ओके, द फन थिंग. दूसरी चीज़ आती है सिनेमाटोग्राफी. भाई कमाल की सिनेमाटोग्राफी है, बेस्ट. यानी इफ़ यू वेंट टू द आप कौन सा भी फ्रेम उठा के पकड़ लो ना, वो हर एक फ्रेम एक फ़ोटो कॉपी लगता है. यानी एक फ़ोटो की तरह, जिस तरह से आप कंपोजिट करते हो कैमरा को और सेट को और एक्टर को और सब्जेक्ट को, वो प्लेसमेंट इतना प्रॉपर फंक्शनल है कि वाह. लाइक एवरी फ्रेम लुक्स लाइक अ फोटोज. And this is great. Let me tell you one thing, cinematography was kamal. Okay, as also let me tell you one thing कि this film is actually shoot at very dark, क्योंकि इसका जो टोन है वो काफ़ी डार्क टोन है, काफ़ी शैडो से हाईलाइट. यानी बेसिकली इसमें जो लाइट इस्तेमाल किए गए वो बैकलाइट बहुत ज़्यादा किए. बैकलाइट से क्या होता है कि इफ़ यू वेंट टू द लाइट एट, इफ़ यू पुट द लाइट एट बैक टू द सब्जेक्ट बैक एंड व्हेन यू पुट कैमरा टिल्ट डाउन टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, तो उससे वो सब्जेक्ट का जो अपीयरेंस है वो काफ़ी एक बड़ा लगता है और उसके पीछे से आने वाला जो लाइट है वो उस अपीयरेंस को और भी ज़्यादा इन्हांस करता है. एंड दैट इज़ अ वेरी कॉमन लाइट फ्रेम सॉरी वेरी कॉमन लाइटिंग टेक्निक्स दे आर यूज इन दिस एंटायर फिल्म. मैंने एंटायर फिल्म में जिस तरह की लाइटिंग की गई है वो सारी की सारी लाइटिंग एक तरह से बैकलिट है और मोस्टली शैडो फेस है. शैडो फेस यानी स्प्लिट फेस है. ओके, स्प्लिट फेस यानी वन साइड डार्क वन साइड ब्राइट. ओके, वो जो ट्रायंगल वाला वो है ही नहीं. ओके, बस कुछ कुछ सीन यानी कुछ कुछ शॉट है जहाँ पे यानी डे लाइट का शूट है, वहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट अप है. बट रेस्ट ऑफ द फिल्म यानी ऑलमोस्ट लाइक 80% ऑफ फिल्म इज़ एक्चुअली जिस तरह से लाइटिंग की है सब्जेक्ट के ऊपर वो काफ़ी डार्क और काफ़ी मूडी है. मूडी यानी एक तरह से स्प्लिट टोन वाली टोन है जो काफ़ी एक तरह से मूडी बनाता है. मूडी यानी मूडी समथिंग लाइक दैट कि रिप्रेजेंट करता है कि उस यानी लेट मी टेल यू वन थिंग कि अगर आप किसी बंदे को रियल लाइफ में देखते हो तो वो बंदा किस तरह से दिखता है. ऑब्वियसली वो लाइट को फॉलो नहीं करेगा. ओके, तो लाइट हमेशा चेंज होते रहेगा फ्रॉम यहाँ पे पीछे आगे पीछे समथिंग लाइक दैट. सेम थिंग हैपन. यानी आपको किसी बंदे का चेहरा कभी क्लियर, कभी इस फिल्म में आपको किसी बंदे का चेहरा फुल दिखेगा ही नहीं. ओके, हाँ कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन है जहाँ पे कुछ स्टोरी रिलाई करती है, वहाँ पे आपको पूरा फेस दिखता है. जहाँ पे लाइक देयर इज़ अ सीन ऑन दैट कि व्हाट इज़ हर नेम, जो फीमेल एंटेगनिस्ट है. ओके,
उनका जो फेस कट है वो उसको काफ़ी ब्राइट अप किया गया है, क्योंकि शी वाज एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर, सो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग होगी, तो उन पे अच्छा सा लाइटिंग किया गया है। बट रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के लिए जो लाइटिंग इस्तेमाल की गई है वो काफ़ी डिम लाइटिंग की है। सो बेसिकली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज विद द सिनेमाटोग्राफी, क्योंकि वहाँ पे हाईलाइट्स और शैडो को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यानी बहुत ज़्यादा कॉशियस कर रखना पड़ता है। ओके, एज ऑल्सो they are using a very raw footages because of that, कि if you are working with a very low light और उस पर आप इतनी अच्छी ग्रेडिंग कर रहे हो, तो ट्रस्ट में जो फुटेजेस है वो जिसकी रॉ कैपेबिलिटी कमाल की। लेट मी टेल यू वन थिंग कि शायद उन्होंने एरी से ही इस्तेमाल किया गया, एंड मोस्टली जस्ट कि उसकी रॉ कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है। ओके, वन थिंग। दूसरी चीज़ होती है सेट। सेट यानी कैरेक्टर के पीछे जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है वो कितना रियलिस्टिक है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि कैरेक्टर के पीछे जो बैकग्राउंड है ये रियलिस्टिक लगता है एक सम सर्टन सिचुएशन पे फेक लगता है। यानी द एक्चुअली द कैरेक्टर इज़ फ्रॉम द यूएई, तो उसका जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है इट वॉज कम्प्लीटली ग्रीन स्क्रीन। तो वो एक सेकंड में ही पकड़ गया मैंने कि ये ग्रीन स्क्रीन है। बस वो डेजर्ट देख के मेरे को लगा उसमें कुछ भी डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है, वो क्लियर दिख रहा है वो। ओके, वो 2 सेकंड का शॉट है बट वो क्लियर हो गया कि दिस इज़ या सेट में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू वेंट टू द RRR फिल्म। तो RRR फिल्म में जिस तरह से सेट डिज़ाइनिंग की है भाई कमाल की। The way that they put the thing on the set is actually from 1920, यानी वो दैट फिल्म इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन 1920। तो उस तरह से के सारे सेट यानी जो चीज़ें आपको फ्रेम में दिखते हैं, जो गाड़ी है, फिर टेबल, चेयर, कुर्सी, कॉस्ट्यूम्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो एक तरह से वो रेप्लिकेट करता है उस एरा को। सेम थिंग जो RRR में रिप्रेजेंट की गई है, दैट इज़ रियली वन ऑफ द बेस्ट। बट KGF में उस तरह की सेट डिज़ाइनिंग नहीं की गई है। ओके, लाइक बेसिकली आई वॉज एक्चुअली वेरी मच कन्फ्यूजिंग अबाउट कि दिस थिंग एक्चुअली हैपन एट 1972, but the things what are the person they are using, their clothing and things, they are actually look like almost like a 2002 or 2004 maybe. So set पे इतना अच्छा काम नहीं किया गया। Okay, that's I don't really like it. Let's talk about acting. Acting was really good. Okay, like let me tell you one thing, I watch like a एक्टिंग रिप्रेजेंट होती है एक ओरिजिनल कंटेंट, यानी बेसिकली अगर आप एक इंग्लिश फिल्म को हिंदी में डब करके देख रहे हो तो आप एक्टिंग को जज नहीं कर सकते। सेम थिंग हैपन विद द जो फिल्म साउथ में यानी तमिल में बनी हुई है उसको आप हिंदी में देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप उसकी हिंदी में यानी आप एक्टिंग को जज नहीं कर सकते। बट द वे दैट अपीयरेंस इज लुक्स एंड थिंग्स एंड द डायलॉग्स डिलीवरी वाज रियली ग्रेट। ओके, या कॉस्ट्यूम्स। ओके, कॉस्ट्यूम्स और उनके मेकअप, लेट मी टेल यू वन थिंग, KGF 2 में जिस तरह से मेकअप किया गया भाई कमाल के लगते हैं, जस्ट वे बेटर, लाइक दिस इज़ द बेस्ट। लाइक इस तरह का मेकअप मैंने कभी भी नहीं देखा। लाइक पुष्पा में तो KGF में सॉरी RRR में हाँ मेकअप था बट इट डोंट रियली मैच विद दिस KGF 2 में जिस तरह से मेकअप किया गया भाई कमाल, like wow. First of all, let's talk about Sanjay Dutt character. When you watch that character, wow, this is exactly a Viking. वो पूरी vibe ही छोड़ रहा है वो Viking वाली, and wow, this is the makeup. It's not just a kind of like not just Sanjay Dutt makeup. The rest of the remaining character, I'm not talking about the Yash, I'm not talking about the female, there are rest of the character who is actually a very much big part of this story. तो उनके जो कॉस्ट्यूम्स या उनके जो मेकअप किया गया है भाई कमाल। यानी बेसिकली जो इंडिया में नहीं क्या कुछ तरह के लोग हैं जिनके टोन यानी जिनकी स्किन का कलर है
वो ब्राउन है, बट दे आर नॉट एक्चुअली ब्राउन, दे आर एक्चुअली लिटिल बिट ऑफ डार्क, यानी हल्का सा डार्क है। यानी इफ़ यू वेंट टू द डॉट एंड इफ़ यू वेंट टू द पीपल हु आर वर्किंग द माइन, तो वहाँ पे उनकी जो स्किन होती है ना, वो स्किन तो ब्राउन होती है, बट उनमें जो एक हल्का सा ब्लैक का टिंट लग जाता है। ब्लैक का टिंट यानी हल्का सा डार्क लगने लगता है। ओके, लाइक बेसिकली सेम कलर टोन हैपन विथ माई फादर टू, लाइक बेसिकली दिस इज द एग्जैक्ट सेम skin color of the most of the natural इंडियन मैन। ओके, जिनके स्किन जिस तरह से हल्की सी ब्लैक होती है, और रियल लाइफ में इतनी ब्लैक नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, दे आर ट्राई टू टेक केयर ऑफ देयर फेस एंड थिंग्स लाइक दैट, सो दे लुक गुड। बट इस फिल्म में जिस तरह से मेकअप किया है, जिस तरह से उनको डार्क किया गया है, और प्रॉब्लम इज़ दिस थिंग कि अगर अच्छा दिख रहा हूँ तो अच्छा दिख रहा हूँ तो ये अच्छी बात है। लाइक बेसिकली आई एम गुड, मैं एक वाइट हूँ और मेरे पे अच्छा लाइट आ रहा है, सो उस पर एडिटिंग करना, कलर ग्रेडिंग करना अच्छा होता है। ओके, इट जस्ट रियली गुड। लेट मी टेल यू वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फिल्म इज़ एक्चुअली इस फिल्म में जो लाइटिंग की गई है वो स्प्लिट टोन लाइटिंग की है, और स्प्लिट टोन लाइटिंग में आधा शक्ल तो दिखती नहीं। दूसरी चीज़, इस फिल्म में जिस तरह से मेकअप किया गया है वो भी एक तरह से ब्लैक टिंट वाला है, यानी जो कलर है, यानी सॉरी, जो शक्ल है, जिस तरह से उन लोगों ने एक्ट किया है, उन लोगों का जो मेकअप किया है वो जानबूझ के ब्लैक किया गया। तो इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ वेरी मच डिफिकल्ट। वो कैमरे में क्या दिख रहा है मेरे को खुद नहीं समझ में आया, क्योंकि फ्रेम में भी बिल्कुल आधी शक्ल दिख रही है मेरे को बस। It's just like very difficult to do such a kind of like a work that they do. It just like wow. Makeup, bhai, kamal. I really like it. They gives you very natural vibe. Like when you watch some of the like movies called like कौन सी भी फिल्म उठा लो बॉलीवुड में, बॉलीवुड की फिल्म में कौन सी फिल्म उठा लो, सॉरी, जो सीरियल्स है, सीरियल्स में हर लोगों की शक्ल बिल्कुल एकदम अच्छी दिख रही है। दे आर वेयरिंग रियली ग्रेट स्टफ, दे आर वेयरिंग समथिंग रियली सूट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, दे आर ऑलवेज रियली गुड। ओके, बट एक्चुअली में इस तरह से लोग होते नहीं ना, जो KGF में जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कैरेक्टर, दे आर एग्जैक्टली लुक लाइक अ रियली नॉर्मल कैरेक्टर, एंड वो बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करते एक फिल्म के लुक को, कमाल। ओके, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि सब को ठीक किया है, बट वहाँ पे नहीं किया। जो एक्ट्रेस है उनको एक अलग ही टोन दिया है। बेसिकली लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर लाइक बेसिकली देयर आर 10 मेन, लाइक 10 लोग हैं जो सेम ब्लैक कलर के यानी ब्लैक टोन के कुछ कपड़े पहने हैं, उसके बीच में एक लड़की आती है, वो एक वाइट कलर की सलवार पहन के आती है, सो बेसिकली दैट कलर विल पॉप। तो ये बहुत सारे सीन में है जो काफ़ी एक डिफ्रेंशिएट करता है उन लोगों के बीच में और उस कैरेक्टर ने फीमेल कैरेक्टर के बीच में, यानी शी वॉज रिच एंड दोज आर पुअर। ओके, तो ये मेकअप का डिफिकल्ट नहीं है, दिस एक्चुअली स्टोरी बिलोंग्स टू इट, क्योंकि शी वॉज एक्चुअली केम फ्रॉम द रिच फैमिली, सो बेसिकली शी हैज़ टू बी लुक गुड, सो शी वेयर मोस्ट ऑफ द इन्हें जो फीमेल के ड्रेस, यानी जो फीमेल जो एक्ट्रेस है जिसने इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, शी वॉज एक्चुअली वियरिंग अ रियली वाइट, मोस्टली वाइट, ओके, वाइट समथिंग लाइक दैट, की गाउन, सलवार कमीज, वट एवर। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ गिविंग यू समथिंग रियली गुड। ओके, समथिंग रियली स्प्लिट, यानी एक तरह से स्प्लिट करता है कि शी वॉज एक्चुअली केम फ्रॉम रिच फैमिली एंड ऑल दोज थिंग्स। लेट्स टॉक अबाउट यश। उनका मेकअप तो भाई obviously Yash was really great. Okay, he has some sort of beard looks, and he was actually really workout, and he is really good. Like basically there is nothing to say. Things to say about Yash is that कि उनके costumes, भाई उनके जो body पे जिस तरह से जो blazer they wear was कमाल, best. The way that they use sunglasses was really good, great. I really like it. Yeah. And let's talk about story. Okay, सॉरी, अभी VFX के बारे में बात करते हैं। स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, पहले VFX। तो VFX बहुत ही गंदे थे, बहुत ही गंदे, लाइक
लाइक आई कैन मेक इट दोज VFX इन आफ्टर इफेक्ट्स टू। ओके, तो ये बहुत गंदे थे। ओके, आई डिडंट रियली लाइक इट। ये बहुत ही घटिया थे, मुझे एक भी पसंद नहीं है, एक भी पसंद नहीं आया। ओके, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दे नो दैट कि दे कैन नॉट बीट द VFX, तो उन्होंने बहुत सारे शॉट कम किए। मोस्टली जो उन्होंने जो शॉट्स किए वो काफ़ी स्लो मोशन, जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया वो काफ़ी स्लो मोशन और प्रैक्टिकल एक्शन दिखाया गया। यानी बेसिकली आप इस फिल्म को देखोगे तो इस फिल्म में जिस तरह से एक्शन हुआ है वो एक्चुअली में हुआ है। या लाइक बेसिकली यश इज़ एक्चुअली किलिंग सम सॉर्ट ऑफ गाय, तो ही इज़ एक्चुअली किलिंग सम सॉर्ट ऑफ गाय। ओके, वो VFX वालों उनको पता था कि वो घटिया काम करेंगे, तो दे डिड एक्चुअली अ रियल ग्रेट स्टंट्स टीम। यानी स्टंट में जिस तरह से काम किया गया है भाई, बेस्ट, गुड, ग्रेट, वाओ, यानी उस पर कुछ डाउट ही नहीं है। ओके, बट रेस्ट ऑफ द सम सॉर्ट ऑफ VFX इज रिक्वायर्ड, लाइक ब्लास्टिंग के लिए चाहिए, फिर कुछ कुछ जगह पे है जहाँ पे VFX का यूज़ किया गया है एंड दे लुक रियली पैथेटिक। आई डिडंट रियली लाइक इट, फक। ओके, एंड दे नो दैट, दे नो दैट कि उनका VFX बहुत गंदा है। या बट इस फिल्म की जो स्टोरी है, दैट स्टोरी इज द मेन कैरेक्टर। यही हीरो है, यही हीरो है डूड। दिस इज द काइंड ऑफ लाइक द थिंग इज एक्चुअली वेरी बिग डील, और यही पे सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ। लाइक बेसिकली अगर आपके पास आपकी फाउंडेशन, यानी आपकी जो फिल्म, आपकी फिल्म की जो स्टोरी, आपकी फिल्म की जो स्क्रिप्ट है, अगर इसकी फाउंडेशन ही बहुत ज़्यादा मजबूत होंगी ना, आप कितना भी घटिया सीमेंट लगा लो यार, या कितने भी घटिया दीवार खड़ी कर लो, आपकी फिल्म, आपकी बिल्डिंग कभी भी नहीं गिरने वाली है। एंड दिस इज़ द सेम थिंग हैपन विद द KGF 2 भाई। वाओ, द स्टोरी वाज, let me tell you one thing, KGF 2 is a chapter 2. This is the second sequence of KGF 1. Okay, I didn't really watch the KGF 1, तो मुझे KGF के बारे में कुछ नहीं पता। Okay, still I understand the story and that is a big achievement to a writer, to a film director, क्योंकि ये बहुत अचीवमेंट होती है, क्योंकि अगर आपके पास एक कनेक्टेड स्टोरी है जो लोगों को नहीं समझ में आती। ओके, लाइक बेसिकली इफ़ यू वॉच द एवेंजर एंड समथिंग लाइक दैट, तो आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे, हु इज़ दिस गाय एंड व्हाट इज़ ऑल दोज थिंग्स। लाइक यू जस्ट डायरेक्टली वॉच द एवेंजर एंड गेम, यू डोंट रियली नो व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपेंड। ओके, अनलेस यू हैव टू वॉच द एवेंजर फर्स्ट और एवेंजर मे बी इन्फिनिटी वॉर। ओके, बट KGF 2 इज़ नॉट। ओके, लेकिन हाँ इसमें स्टोरी है। लाइक बेसिकली फर्स्ट हाफ तक तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आता, कुछ भी नहीं समझ में आता। एंड बेसिकली उन्होंने फिल्म इसी तरह से बनाई गई है कि जो भी बंदा इस फिल्म को देखेगा, जो इस फिल्म को नहीं जानता, वो फर्स्ट हाफ तक तो वो उसको समझेगा ही नहीं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपन, क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है। बट स्टिल ही वॉज वॉच दैट फिल्म बिकॉज ऑफ दैट, कि उस फिल्म की जो पेसिंग की गई है भाई वो स्टार्टिंग के 10 मिनट से ही क्लाइमैक्स शुरू। दिस इज़ काइंड ऑफ लाइक द वे दैट यू थिंक लाइक दैट, कि एक फिल्म में 10 या 20 मिनट का क्लाइमैक्स होता है, पूरी की पूरी फिल्म क्लाइमैक्स की नहीं होती। इसमें पूरी की पूरी फिल्म क्लाइमैक्स की है, पूरी की पूरी। द वे दैट द साउंड इज बम्बार्ड एंड जस्ट लाइक थिंग्स हैपन, द डायलॉग्स एंड स्टोरी एंड जस्ट लाइक वाओ 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 वाओ। आपको सोचने समझने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। ओके, इट जस्ट लाइक अ या, बट स्टिल व्हेन यू इंक्रीज द पेस ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। या एक्सपेक्टेशन, तो वो आई फील दैट हाँ, हम वो पेसिंग पे लेवल पे देख तो लेते हैं 2 घंटा 2.5 घंटा, बट स्टिल एक भी मिनट का गैप आता है तो वहाँ पे आपको ब्रीथ लेते हो, फिर वो ब्रीथ लेने के बाद फिर इट फील्ड लाइक अ लिटिल बिट ऑफ बोर। वो 1 मिनट या 2 मिनट का है जो लास्ट वाला जो सॉन्ग है, जहाँ पे यश एंड दैट द फीमेल कैरेक्टर इज़ एक्चुअली डूइंग डांस एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वहाँ पे वो सीक्वेंस मुझे बोर लगा, क्योंकि वो एकदम मैक्सिमम पेस के बीच में वो 2 मिनट का सेगमेंट है जो काफ़ी बोर लगा। ओके, वही सेम होता है, क्योंकि अब जब आप पेसिंग बढ़ाते हो तो एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। एक्सपेक्टेशन कम होने के बाद
आप देख तो लेते हो पूरा, क्योंकि पेसिंग पेसिंग कैसे बढ़ाते हैं, पेसिंग बढ़ाते हैं जो साउंड, फिर थिंग्स, फिर डायलॉग्स एंड द बम्बार्डमेंट एंड द the things happen very quickly happen. So yeah, so this is exactly happened. तो pacing रहती है, but expectation कम होते हैं, and then after some sort of gap you feel little bit of bore. But अगर आप ये फिल्म शायद थिएटर में देख रहे हो तो यू डेफिनेटली एन्जॉय, बट आप अगर आप ये किसी मोबाइल फ़ोन में या आप सिंगल अकेले देख रहे हो तो स्टिल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉच इन इवन फर्दर बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आप इतनी पेसिंग कर देते हो, अगर आप 2 सेकंड का भी पॉज ले हो तो फिर आप लगते हो कि यार भाई रुक जा थोड़ी, ओके क्योंकि एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है, तो वी डोंट रियली नीड कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपन, क्योंकि सब कुछ एकदम धड़ 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 हो रहा है. सो या बट स्टोरी इज़ रियली गुड भाई, like wow, the great, the like I was not actually talking about the story, like if I talk about there is spoiler will happen, I'm not talking about a spoiler, but bhai, the story is really good. I really like it. The way that the dialogue delivered and way that dialogue written, come on. KGF 2 is one of the hell of the really great story yaar, and I really like it. All right, I was just talking about this game, and so I was just talking about this movie, but there are very not so good thing happened till now, because till now I didn't really upload anything. I just uploaded one thing, and I just upload some of the gameplays and things like that. I don't know, yaar. Tomorrow is really great, not so great, because of that key till now you have to achieve almost like a 900 subscriber, but right now I have almost like a 540 53 maybe 63. That is good, yeah, क्योंकि like I was getting so many traffic, yeah. I just like मैंने सुबह से कुछ upload तो किया नहीं, but I was getting really good traffic and as also comment and things like that. So it's good, great. सब्सक्राइबर तो बढ़े, बट व्यूज़ एंड वॉच टाइम कम हुआ है लास्ट 28 डेज़ में. आई सीन दैट. अभी तो मेरे कुछ, क्योंकि आई जस्ट वॉच दिस KGF 2 एंड आई वॉज एक्चुअली थिंक अबाउट द KGF 2 एंड आई वॉज नॉट रियली एबल टू वर्क दिस थिंग. Whatever. So there's a decision. Thank you, by the way. Let me eat.